गुजरात के वडोदरा के शिनोर क्षेत्र में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने आफत मचा दी। वडोदरा के शिनोर क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज तूफानी हवा के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर घरों की छतें उड़ गई। वहीं आकाश में बिजली कड़कती और गड़गड़ाहट के साथ मौसम ने अपना रुख बदला। शिनोर के सांथली गांव में स्थित दी वडोदरा सेंटर कोऑपरेटिव बैंक की छत पर लगे एक टावर तेज हवाओं के कारण गिर गया। सौभाग्य से बैंक के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि टावर कार्यरत नहीं था। बाद में टेक्नीशियनों ने उस टावर को सावधानी पूर्वक हटाकर नीचे उतारने का काम शुरू किया। वहीं करजन क्षेत्र में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। खासतौर पर करजन के भरथाड़ा गांव में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किसानों ने बड़ी मेहनत से सुखाई हुई मक्के की फसल तैयार की थी, लेकिन अचानक बदले मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमारी पास 700 क्विंटल मकई है અને ગઈ કાલે રાતે લગભગ 2-2:30 વાગ્યાના ગાળામાં વરસાદ પડવાથી ઘણું નુકસાન થયેલું છે અને અત્યારે અમે આ કોથરા ખાલી કરી અને મક્કા કરીએ છીએ અને ખેતરમાં હોય ઘણું નુકસાન થયું છે, બાજરી છે અને સરકારશ્રીને એટલી અપીલ કરીએ છીએ કે અમને કંઈ થોડી ઘણી રાહત મળે એવી આશા રાખીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी एक बार फिर सुर्खियों में है। वडोदरा महानगर पालिका के कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने हाल ही में विश्वामित्री नदी का दौरा किया। सरकार ने नदी तट की सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और नदी सुधार प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। नदी के दोनों ओर पर करीब 80% से ज्यादा काम पूरा होने का दावा किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल आई बाढ़ ने शहर में भारी तबाही मचाई थी। ऐसे में सरकार अब नदी में ज्यादा से ज्यादा पानी संग्रहण करने पर जोर दे रही है। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं और आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए एक्शन प्लान की जानकारी साझा की है। આજે વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટ જે પ્રગતિ હેઠળ હતી, અમે જ્યારે શરૂઆતમાંથી એની પ્રગતિની રિવ્યૂ કરતા જ આવ્યા છે। અત્યારની પરિસ્થિતિમાં આપ જોઈ શકો છો કે લગભગ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું 100% પૂરું થઈ ગયું છે। રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પણ અમે ક્લોઝ ટુ 90% કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે, જે 24.7 કિલોમીટરની પટ્ટો છે। આગળની પાર્ટ તો ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ કરે છે। એ કામ સંતોષકારક છે। અમે અગાઉ અંદર પણ જઈને વિઝિટ કરીને આવ્યા છે। કામગીરી ચાલુ છે અને સાથે સાથ ગઈકાલે પણ અમે સ્ટોર્મ જે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીઝની રિવ્યૂ કરી હતી, એમાં ખાસ કરીને 5 વસ્તુ ધ્યાને રહેવા માટે કીધું છે અને સૂચનાઓ પણ આપી છે અધિકારીને। ટૂંક સમયમાં ઓર્ડર પણ આજે કરવાના છે। જે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી અમે મે 31 અને જૂન 10 તારીખની વચ્ચે કમ્પ્લીટ કરવાની ખાતરી આપી હતી, એ પ્રગતિ હેઠળ છે। સાથે સાથ ડ્રેનેજમાં પણ 4 ભાગ અત્યારે અમે કરવામાં આવી છે। એક પ્રોજેક્ટ વિભાગ જે ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સનું કામગીરી કરી રહ્યા છે। સેકન્ડ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજીસ માટે એક સેપરેટ અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। ગટર લાઇન્સની અંદર પણ જે ઢાંકણો ખાલીને જે પિટ હોલ્સને સુપર સક્શન મશીનથી કાઢવા માટે એ મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ અને એના માટે એક એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરની નિમણૂક કરી છે। વરસાદી ખાસ છે, એને પણ નિકાલ કરવા માટે એક ઓફિસર છે, એ આપણે નારી શક્તિની વાત કરીએ એટલે ફિમેલ ઓફિસરને આ કામગીરી સોંપી છે, પણ ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક છે, એ પણ કરશે। સાથે સાથ જે પણ તળાવો જે ઊંડા કરવાની વાત છે, આજવા, પ્રતાપપુરા, દેના સિવાય લગભગ 47 લેક્સ અત્યારે ઊંડા કરવાનું કામ પણ પ્રગતિ હેઠળ છે। એના માટે પણ સ્પેસિફિક અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। આવનારા દિવસોમાં અલગ અલગ લેક્સની પણ વિઝિટ કરીશું। એમાં પણ જેનું પાણીનું સંરક્ષણ વધારે થાય એ બાબતના દિશામાં અમે કામગીરી કરી રહ્યા છે। સિટીની અંદર આ 2 દિવસનું આગાહી છે વરસાદ અને બારિશનું, પવનનું। એ બાબતમાં પણ ક્વિક રિએક્શન ટીમ્સનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે। લગભગ પહેલાં 10 તબક્કામાં 10 રોડ્સ, પછી 20-25 આવા દરેક રોડ સુધી 5 મિનિટ 10 મિનિટની અંદર ક્વિક રિએક્શન ટીમ પહોંચી જાય એવા બાબતનું અમે આયોજન કરી રહ્યા છે। જેથી કરીને એક ઝોનલ એન્જિનિયરના નીચે ડી અથવા જેઈના ટીમ, એના સાથે એક જેસીબી મશીન અને ફાયરના ટીમ, ગાર્ડનના ટીમ, આટલા લોકો રોડમાં ઝાડ પડી જાય તો કાઢવા માટે, ફાયરના ટીમ એને નિકાલ કરવા માટે, અને તરત જ કંઈ માટી વાટી પૂરી જાય તો જેસીબીથી દૂર કરવા માટે, અને સાથે સાથ સુપર સેક્શન મશીન્સ જે પોટ હોલ્સ અને મેનહોલ્સ ભરી જાય એને કાઢવા માટે એક ટીમ સક્ષમ બનાવીશું। गुजरात में मौसम की करवट कई लोगों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन कई लोगों के लिए ये आफत साबित हो रही है।
अरवली जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बीच तेज हवाओं ने तहलका मचा दिया। मेघराज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम की इस अचानक तब्दीली से खासकर कैरी के खेतों को व्यापक नुकसान हुआ है। भारी हवाओं की वजह से अंबावाड़ी इलाके में कैरी के पेड़ झुक गए और कई फलों को भारी नुकसान हो गया। किसान पहले ही उपज की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन इस आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। કાલે વાવાઝોડું આવ્યું હતું, તેના કારણથી અમારા આંબાની કેરીઓ ઘણી બધી પડી ગઈ અને 15 દિવસ પહેલા પણ વાવાઝોડું આવ્યું હતું, એમાંથી પણ ઘણું બધું નુકસાન થયું છે અને ઘણું બધું આ કેરીઓનું ને બધું નુકસાન થયું છે. હજી પણ આ બધું સાફ પેલું થઈ ગયું કેરીઓ બધું, એટલે આનું છે ને સરકાર ગમે તે વળતર કે આ બધું આપી શકે એમ. બધી આ કેરીઓ બધી આમ ને આમ થઈ જાય તો અમારે શું કરવાનું? 50% પહેલા કરી ગઈ, 50% હમણાં કરી, તો બધી આ પાકવા આવી ગઈ તો અમારે નુકસાન બહુ થાય છે. તો અમને સરકાર કંઈક લાભ આપે એવી અમારી વિનંતી છે. આ પવન આવ્યો હતો રાત્રે, બહુ પવન આવી ગયો હતો, એના કારણે બધું અમારે વાડી બધી ફેલ ગઈ. આનામાં તો અમારે થોડું ઘણું કમાવાનું હોય. विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर ने कछुओं से जुड़ी कुछ खास जानकारी साझा की। आज 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य कछुओं और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। लाखों वर्षों से पृथ्वी पर जीवित कछुए न केवल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों में धैर्य और बुद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। वडोदरा और उसके आसपास के इलाकों में 2 प्रमुख प्रजातियां देखने को मिलती हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल और इंडियन स्टार टर्टॉइस। कछुए के महत्व पर गुजरात में उनकी बस्ती को लेकर सयाजी बाग जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर ने जानकारी दी। आज विश्व कछुआ दिवस है। कछुए जो है वो सरीसृप वर्ग के पुरातन काल के जीव हैं। सरीसृपों की उत्क्रांति के साथ डायनासोर्स के समय से कछुए जो है वो पृथ्वी पर अस्तित्व रखते हैं। करोड़ों और अबजों साल से कछुए जो है वो इस पृथ्वी पर जीते आ रहे हैं। कछुए जो है उनका अपना प्रकृति में, कुदरत में उनका अपनी एक अहम भूमिका है और इस भूमिका के तहत उनका इस पृथ्वी पर होना और उनका संरक्षण करना ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी में आता है। कछुए पूरी दुनिया में तकरीबन 300 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जिसमें से 32 प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती है। 8 प्रजातियों के दरियाई कछुए हैं और दरियाई कछुए काफ़ी संरक्षण मांगते हैं और दरियाई कछुओं का संरक्षण के लिए दुनिया भर में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। भारत में ज़मीनी कछुओं की बात करें तो ज़मीनी कछुओं की 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से पश्चिम भारत और गुजरात में जो है वो सूरज कछुआ यानी कि इंडियन स्टार टॉर्टॉइस जो है वो पाया जाता है। बड़ौदा जू, सयाजीबाग जू में भी बड़ौदा स्टार टॉर्टॉइस की काफ़ी अच्छी संख्या है और अच्छी तरह से जू में ब्रीड हो रही है कछुए। उसके अलावा जो मीठे पानी के कछुए हैं जो नदी और तालाब और जलाशय में पाए जाते हैं, इन कछुओं का खास काम यह है कि ये पानी के अंदर के सफाई कामदार के तौर पे इनकी पहचान है। कौवे, गिद्ध और लकड़बग्घे जो ज़मीन पर जो काम करते हैं कि मृतदेह जो प्राणियों का होता है उसको खा के, उसका मांस खा के उसमें उसके सफाई करते हैं, उसी तरह से मीठे पानी के कछुए जो है वो पानी के अंदर सफाई कामदार का एक अहम भूमिका रखते हैं। पानी के अंदर जब भी कोई मरा हुआ जीव होता है तो उसको पूरी तरह से उसका मांस खा के उसको सफाई करके साफ करने का काम ये कछुओं का होता है। कछुए प्रकृति में एक बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं और इसीलिए इनका संरक्षण करना भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मैनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस। आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ।
आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा इलाके में एक दुकान में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा इलाके में दुकान में अचानक आग भड़क उठी। मामला दूलीराम पेड़ावाला के पीछे स्थित एक वॉशिंग मशीन की दुकान का है। बताया जा रहा है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। नमाज के लिए जा रहे थे, तो नमाज में क्या है कि हमारे घर की लेडीज थी ना, वो बाहर वजू करने के लिए आई थी। तो क्या है कि एसी में स्पार्क हुआ छोटा सा, तो वो डर गई थोड़ी, तो वो अंदर नहीं गई। तो फायर एग्जीबिशन भी अंदर था, तो वो किस तरह पकड़ने जाती। तो फिलहाल क्या है कि वो अंदर से जो एसी ब्लास्ट हुआ ना, तो अंदर से सब धुआं बाहर आ रहा था। तो धुआं बाहर आया तो वो लेडीज लोग तो घबरा जाए ना, तो फिर तुरंत ही हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद डायरेक्ट कि वो यहाँ पर सर्विस देना आता है। दूसरा पुराना एसी था क्या? हाँ, एसी को 2-3 साल हो चुके थे और एसी फट गया अंदर, यानी हाई वोल्टेज से फटा। बाकी सुबह से एसी चालू ही था। नहीं, हजू तो अभी फिलहाल तो कुछ पता नहीं है, तो अभी वो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। કંટ્રોલ રૂમમાંથી કોલ મળ્યો હતો કે દુલીરામ પેંડાની બાજુમાં ગલીમાં દુકાનમાં આગ લાગી છે। વિધિન એ મિનિટમાં અમે સ્થળ પર પહોંચી ગયા અને અંદર સ્થળ તપાસ કરતા એસીમાં કંઈક બ્લાસ્ટ થયો છે। એસી સળગે છે, એના ધુમાડા વધારે હોવાથી પાણી મારીને એને કુલિંગ કરેલું છે। ઓવરલોડના તો કારણે થઈ શકે છે। ગરમીનું કારણ વધારે છે, વાયર ગરમી વધારે ઓગળતા હોય તો એમાં વેન્ટિલેશન છે નહીં ના, કોઈ ખાલી એમના એસીનું ये છે એ જ, બાકી કંઈ બધું નુકસાન છે નહીં એટલું બધું। गुजरात के वडोदरा में बारिश के मौसम में आई बाढ़ से कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मानसून की तैयारियों को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 के उत्तर जोन में बिहार टॉकीज की गली में बरसाती कांस की सफाई के दौरान डामर मिक्स की जमाव की समस्या सामने आई है। 1 साल पहले यहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही के कारण डामर मिक्स बारिश के नाले में जमा हो गया था। फावड़े मारकर श्रमिकों ने नाले से डामर मिक्स के थर को बाहर निकाला। वार्ड प्रशासन ने सत्यदेव क्वार्टर्स और गंगोत्री अपार्टमेंट के पास बरसाती कांस की स्लैब तोड़कर सफाई का काम शुरू भी कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के नालों के ढक्कन बार बार टूट जाते हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होता है। कई निवासी मांग कर रहे हैं कि इस रोड पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाए, ताकि सड़क और नालों को होने वाले नुकसान से रोका जा सके। पहली बात तो 400-450 किलोमीटर की बरसाती गटर है। अब उनसे पूछो कि मैनुअल साफ करने का टेंडर लिया है कि बरसाती गटर साफ करने का टेंडर लिया, कारण कि मैनुअल साफ कर रहे हैं। आज भी आपकी चॉइस से या सत्ता पर बैठेला लोगों की चॉइस से या अधिकारी की चॉइस से वो कोई भी बरसाती गटर मेरे को बतावे कि यहाँ साफ करा है, मैं उधर से एक एक ट्रक मट्टी और कचरा निकाल के बताऊँगा। यानी बरसाती गटर साफ करने के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। सही मायने में काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, ये लोगों को बताया जा रहा है। इवन दो बरसाती गटर के जितने टेंडर निकले और निकले, और उसके साथ साथ में डुप्लीकेट माल डालते, इसीलिए ये भुआ भी पड़ रहे। ये भुआ जो पड़ता है ना, तो सेकंड कैटेगरी का जो सलिए डालते हैं वो सलिया मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। नहीं तो क्या होता है कि घर का कोई चीज़ गिरे ना तो अटक जाती है, टन जाती है, क्योंकि सलिया नवा है, वो मुड़ेगा, टूटेगा नहीं। ये सेकंड रिसाइकल जो सलिए बनाते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए इस शहर के अंदर जहाँ जहाँ बरसाती गटर बनी है और उसके ऊपर डामर रोड पड़े, वो धुआं पड़ जाता है और सीधा करोड़ों का नुकसान होता है शहर के अंदर। तो मूल भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। तो आप सोचो कि ड्रेनेज लाइन एक वक्त चौकअप होती है, 15 दिन में दूसरी वक्त होती है, 15 दिन में तीसरी वक्त होती है। इसका मतलब सही मायने में सच्चा काम होता नहीं है और नगर जन हैरान हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में आज NSUI द्वारा MSU हेड ऑफिस के बाहर काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के MSU हेड ऑफिस के बाहर NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। यह आंदोलन साइंस फैकल्टी के कुछ शिक्षकों द्वारा NSUI के छात्र नेताओं के साथ की गई अभद्र भाषा और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ किया गया। आज NSUI की ओर से यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस पे VC सर को रजूआत करने में आई, क्योंकि थोड़े दिन पहले
NSUI के छात्र संगठन के जो छात्र थे उन पे फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन और कोऑर्डिनेटर की तरफ से खराब रीते व्यवहार करने में आया था उनके साथ। तो आज NSUI संगठन ऐसा सोच रहा है कि जब तुम एक छात्र नेता के साथ गलत से रीते बर्ताव करते हो तो तुम छात्र के साथ कैसे बर्ताव करते होगे। तो इसी सारी मांग को लेके आज वीसी सर को रजूआत करने में आई कि ऐसे अध्यापकों को तात्कालिक सस्पेंड करने में आए। जी 26 मई को आज वडोदरा शहर के अंदर जो वड़ा प्रधान का प्रवेश होने वाला है वहां पे हम ये रजूआत को लेके जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मूड में लग नहीं रहे कि वो हमारी समस्या का हल लाएंगे। NSUI शहर अध्यक्ष अमर वाघेला ने मीडिया को बताया कि संबंधित शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और उनका इस्तीफा भी मांगा गया है। એટલે કે શિક્ષા એટલે કે જે શિક્ષક હોય છે તેમને ગુરુ સમાન ગણવામાં આવે છે, પણ જ્યારે શિક્ષક તેમનું ભાન ભૂલી જાય ત્યારે વિદ્યાર્થી નેતાઓએ મેદાને ઉતરીને તેમનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવો પડે છે। જેવી રીતે સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં 20 તારીખના રોજ NSUI દ્વારા કેમ્પેનિંગ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જઈને તેમને સહાય માટે કરવામાં આવતી હતી, ત્યારે સાયન્સ ફેકલ્ટીના અમુક પ્રોફેસરો દ્વારા NSUIના વિદ્યાર્થી નેતાઓ પાસે જઈને ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી હતી, તેમને અભદ્ર વાણીવિલાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમને ધક્કા મારીને તેમની જાતપાત વિશે પણ બોલવામાં આવ્યું હતું। તેને ધ્યાનમાં લઈને અગાઉ પણ NSUI રજૂઆત વીસી સરને કરી હતી, ત્યાંના ડીન સરને કરી હતી, પણ કોઈ પણ યોગ્ય જવાબ NSUIને મળ્યો નહોતો। આજે NSUI ફરી એક વખત હેડ ઓફિસ ખાતે આવ્યું છે, કાળી પટ્ટી બાંધીને આવા શિક્ષકોનો વિરોધ કર્યો છે, કારણ કે આવા શિક્ષકો બેફામ બોલી રહ્યા છે, બેફામ જેમ ભાવે તેમ વર્તન કરી રહ્યા છે અને આવા શિક્ષકો જ્યારે વિદ્યાર્થી નેતાઓ સાથે આ રીતનું વર્તન કરતા હોય તો જ્યારે સામાન્ય વિદ્યાર્થી એમની પાસે જતા હોય તો કઈ રીતનું વર્તન કરતા હશે। મોટી મોટી વાતો કરતા હતા કે જીકાસમાં અમે હેલ્પ ડેસ્ક મૂકી દીધી છે, અમે એમના માટે કામ કરીએ છીએ। જ્યારે NSUI દ્વારા આંદોलन કરવામાં આવ્યું ત્યારે એ બધા એસીમાં બેઠેલા બહાર આવ્યા, બહાર ઊભા રહ્યા, રાતોરાત બધા બોર્ડ લાગી ગયા જીકાસના અને કામ પર ઉતરી ગયા અને વીસી સરને બતાવવામાં આવ્યું કે અમે તો કામ જ કરી છે, પણ હકીકત અમે જાણીએ છીએ, છોકરાઓ જાણે છે, વિદ્યાર્થીઓ જાણે છે। એટલે આ બતાવવાની એ કરવાથી કંઈ એમના જે કલંક જે દાગો છે તે મટી નહીં જાય। એટલે આજે NSUI કાળી પટ્ટી બાંધીને તે ફેકલ્ટીઓનો વિરોધ કર્યો છે અને માંગ કરી છે કે આવા જે બી પ્રોફેસર છે તેને યુનિવર્સિટીથી તાત્કાલિક બરખાસ્ત કરવામાં આવે, કારણ કે આવા પ્રોફેસરોથી યુનિવર્સિટીને ગરિમાને ઠેસ પહોંચી રહી છે।